आज के हमारे सम्माननीय अतिथियों का आगमन हो चुका है। मैं सभी से विनती करती हूँ कि कृपया अपने स्थान पे बैठ जाए और स्टूडेंट जो स्टेज के सामने से दौड़ रहे हैं वो दौड़े ना। टीचर्स कंट्रोल देम। स्वागतम सुस्वागतम। आज के हमारे सम्माननीय अतिथियों का आगमन हो चुका है। मैं सबसे विनती करती हूँ कि तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मैं सभी सम्माननीय अतिथियों को सरस्वती पूजा के लिए आमंत्रित करती हूँ। दीप प्रज्वलन करके वो आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कण कण प्रकाशित हो, समृद्धि हो, सकारात्मकता हो, मानवता उल्लासित हो, जब जले दिया विश्वास का। आओ एक दीप जलाए, आओ एक दीप जलाए, निर्भरता का, नवीनता का, प्रयास का। Chala madam and Poonam madam to escort our guest on stage. We are very happy to see you all together here. Thank you all for joining us here today at this program. I would like to extend a warm welcome to our Honorable Chief Guest, Shri Ashok Ji Gupta Sir, President of Hindi Gujarati Shiksha Mandal, Shri Umesh Ji Bagadia Sir, very respected Shri B.M. Agrawal Ji Sir, Shri Anil Ji Tapadia Sir, Shri Sharad Ji Agrawal Sir, Shri Gopal Ji Agrawal Sir, and dignified members of parents, dignified members of management and dear parents. I welcome all of you Mungilal Bajoria Convent Annual Day. On this occasion, students of MB Convent presenting welcome song before you. आनंद मंगल मंगल
Thank you, students. Thank you so much. I request President Sir to welcome our Honorable Chief Guest, Shri Ashok Ji Gupta Sir. I request President Sir to welcome Shri Raj Guruji Sir. Ma'am to present annual report. Good evening to one and all present here. Good evening, respected parents, esteemed teachers, dear students, and guests. It is with great joy and immense pride that I stand before you today on this momentous occasion of our school's annual day. This event marks a culmination of a year worth of hard work, creativity, and passion, as well as celebration of the growth and achievements of our students. Firstly, I would like to extend my heartfelt gratitude to all the parents, teachers, and students for their continuous support throughout the year. Our teachers, through their dedication and heartless efforts, have not only imparted knowledge but also inspired our students to grow as individuals with strong values, critical thinking, and compassion for others. To the parents, thank you for your constant encouragement and for partnering with us the pursuit of your child's education and overall development. This annual day is not just a showcase of academic excellence, but also an opportunity to highlight the artistic and the extracurricular talents that our students have nurtured. The performance we are about to witness today are the result of hours of practice, teamwork, and a deep passion for learning. These endeavors shape the characters of our students and prepare them for the challenges and opportunities that lie ahead. At our school, we believe in the holistic development of each child, and today's celebration is a reflection of that vision. Whether it is through academic, music, dance, drama, our students continue to shine brightly. I am extremely proud of each and every student here. Your enthusiasm, commitment, and resilience are truly commendable. You inspire us all, and we are confident that you will continue to excel in every endeavor you pursue. I am also proud to announce our this year sportsmen who have been selected for division, national, and international games. Our students have achieved places in tennis, volleyball, boxing, handball, cycling, kho-kho, rugby, cricket, and so on, in which Akshara Zatale, Purva Zhade, Gautam Rathod, Samarth Mahisne, Pratik Kude, Sanika Dhage, Kritika Agrawal, Mahi Sanganeria, Sampada Chauhan, Pari Sharma, Palak Yadav, Kajal Sharma, Sheetal Chauhan, Kaushik Hussain, Bhakti Kavde, Manav Vopulkar, Bharat Kalamkar, Rohit Thakre, Subodh Joshi, Sohail Khan, Yash Jamnik, Nikunj Patil, Rishikesh Mahisne, Om Chaudhary have secured their places. As we celebrate today, let us look forward to the future with renewed hope and determination. May this annual day remind us of the importance of stunning for excellence, embracing challenges, and fostering an environment where every student can grow
thrive and contribute meaningfully to society. Once again, my sincere congratulations to all the students for their hard work and my thanks to the teachers, parents, management and everyone who has contributed to make this event a success. Let's enjoy this evening together and celebrate the spirit of the school. Thank you. Thank you, ma'am. Our next program is prize distribution. Each and every child is unique and special. All children are gifted with a unique set of talents and potential in which they may shine and excel. Every child is distinctly talented. Today, we will felicitate the students who have shown remarkable performance and made us all proud. I request Honorable Chief Guest and all the dignitaries to please come forward to felicitate our student. I request all of you, please come forward to felicitate our students. First rank from nursery, Ansh Pandey. Second, Daksh Sharma. From UKG, first rank, Arohi Surwade. From UKG, first rank, Arohi Surwade. From UKG, second rank, Chanakya Tiwari. From first standard, first rank, Ronak Giri. First standard, second rank, Shivansh Gandhi. From second standard, first rank, Tejas Gotwal. From second standard, first rank, Tejas Gotwal. From second standard, second rank, Divyam Jain. Sorry. I request Mrs. Tapriya, please come on the stage. I request, please ma'am, please. From third standard, first rank goes to Vanshika Sharma. From third standard, first rank goes to Vanshika Sharma.
From third standard, second rank, Naman Sadar. From fourth standard, first rank, Arya Singh Chauhan. पेरेंट्स एप्रिसिएशन के लिए तालियां नहीं आ रही हैं. From fourth standard, second rank, Parth Godale. From fifth standard, first rank goes to Vidhi Chauhan. From fifth standard, second rank goes to Sachi Jain. From sixth standard, first rank goes to Kajal Sharma. From sixth standard, second rank goes to Gaurav Jamnik. From sixth standard, second rank goes to Gaurav Jamnik. From seventh standard, first rank goes to Shreya Chopde. For seventh standard, second rank goes to Sampada Chauhan. From eighth standard, first rank goes to Master Tanmay Joshi. Second rank goes to Miss Gauri Paraskar. From ninth standard, first rank goes to Miss Gauri Khumkar. From ninth standard, second rank goes to Sarthak Pachori. Now it's time to call our SSC toppers. Sakshi Sangneria scored 90.40%. Please give a huge clap for her.
Master Ayush Agrawal scored 89.60%. Master Ayush Agrawal. Master Ayush Agrawal. Not present. Now it's time to announce the best student of the year 2024-25. And the best student of the year goes to Miss Gauri Kumkar from Standard 10. गौरी के पापा को रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप स्टेज पे आए, प्लीज। थैंक यू सर। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अतिथियों से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। नाउ आई कॉल अपॉन पूनम मैडम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीफ गेस्ट। Good evening to everyone and a warm welcome to all of you. I feel extremely honored to introduce the chief guest tonight, Mr. Ashok Ji Gupta Ji, an student of our school. It is such a privilege to have him, the chief guest, with us as now. Shri Ashok Ji Gupta sir, आपकी प्राथमिक शिक्षा मुंगीलाल बाजोरिया स्कूल से हुई है। आप 1967 बैच के पास आउट है। तत्पश्चात LRT कॉलेज अकोला के स्नातक पदवी आपने प्राप्त की है। जिनके शब्द और कर्म में कभी कोई अंतर न हो, ऐसे व्यक्तित्व विरले की मिलते हैं और उनमें से एक श्री अशोक जी गुप्ता जी है। राज्य के व्यवसाय एवं उद्योग क्षेत्र में आपने विशिष्ट पहचान बनाने वाले अशोक जी ने सन 1980 में तेल उत्पादन क्षेत्र से अपने करियर की शुरुआत की है। उनके स्पष्ट विचार, समर्पण, सभी के प्रति सम्मान, प्रचंड जनसंपर्क और संस्था हित के सर्वोपरि मानने के सिद्धांत में उन्होंने सभी के बीच एक आदर्श व्यक्तिमत्व के रूप में स्थापित किया है। श्री अशोक जी गुप्ता जी ने 15 वर्षों तक MPSC और अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालक पद को सुशोभित किया है। विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रूप में 2 बार निर्विरोध चयनित होकर उन्होंने इस संस्था को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। शहर और जिले की विभिन्न व्यापारी संगठनों को संगठित और सशक्त बनाने में आपका अमूल्य योगदान है। आपने अकोला ऑयल मिल्स एसोसिएशन के पद पर को भी काफ़ी समय तक सुशोभित किया है। इसके साथ ही आपने क्षेत्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति ZRUCC के सदस्य के रूप में लगातार 2 कार्यकाल 4 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी है। अकोला की प्रख्यात श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के स्थापना से ही कोषाध्यक्ष पद पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री अशोक जी गुप्ता जी सर का जीवन युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की समर्पण, निष्ठा और समाज व व्यापारी समुदाय के प्रति
सेवा का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, जो सदैव अनुकरणीय है। We are very grateful to Mr. Ashok ji for accepting our invitation and making his person here. I would request to our honorable chief guest, Shri Ashok ji Gupta ji sir, to guide grace the stage their golden words. Please sir, please welcome for. नमस्कार। मेरे आज एमबी कॉन्वेंट और मुंगीलाल बाजोरिया स्कूल के अध्यक्ष श्री उमेश जी बंगड़िया, मेरे बड़े भ्राता बीएम अग्रवाल जी, शरद बाबू अग्रवाल, गोपाल जी अग्रवाल, अनिल जी थापड़िया, मेरे मित्र हेमेंद्र जी राजगुरु एवं उपस्थित सभी स्टूडेंट्स से ज़्यादा मैं बच्चे कहना ज़्यादा पसंद करूँगा, और उनके माता पिता, सभी पेरेंट्स, सभी को आज के इस एनुअल डे की हार्दिक बधाई देता हूँ। आपको अभी मेरे इसमें बताया ही है कि मैं यहीं का पास आउट हूँ। 1967 में मैंने पास किया था। सभी को हिंदी समझ में आ रही है ना? अब मैं आपको उस ज़माने में लेकर चलता हूँ जहाँ मेरी पढ़ाई हुई। हम लोग की जो पढ़ाई होती थी, तो पढ़ाई ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि एक आधे की किसी की मारपीट ना हो। गुरुजी बोलते थे सभी को 10 तक मारपीट होती थी। कोई किसी के कमर में से, हमारे रामराव गुरुजी सर थे, वो कमर में चिकोटी काटते थे। एक सर तो डस्टर फेंक के मारते थे और आइडेक्स साथ में रखते थे। कई लोग तो छड़ी से मारते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को तो मारना दूर की बात, अगर डांट भी दिया तो शिकायत माँ बाप तक हो सकती है। मैं सभी टीचर्स का अभिनंदन करना भूल गया, क्योंकि उनको ये सहन करना पड़ता है। और इसी तरह हमने यहाँ पढ़ाई पूरी की। बाद में LRT कॉलेज में मैंने बीकॉम करके मेरा पुस्तकीय व्यापार संभाला। मैं आज यहाँ एक ये बताना चाहता हूँ कि हर एक आदमी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने के लिए प्रेरित करता है, और यही सोचता है कि कहीं IT में, कहीं इसमें उसमें जॉब में चला जाए। और ऐसा वाकई जिनके साथ भी हो रहा है, जॉब में जा रहा है, अच्छी बात है। और बाद में लेकिन वो माँ बाप के काबिल नहीं रहता, क्योंकि वो चले जाता बाहर। उसकी शादी भी जॉब वाली लड़की से होती, बाद में दोनों माँ बाप से दूर हो जाते। यहाँ कई परिवार अभी ऐसे हैं जो सिर्फ माँ बाप यहाँ रहते हैं। सिर्फ कोई फॉरेन में अगर कोई दंपत्ति चले गए, उनका बच्चा, तो माँ बाप सिर्फ डिलीवरी के समय ही वहाँ जाते हैं। और मैं कुछ बच्चों के और अभिभावकों के लिए बताना चाहूँगा कि आजकल जो बीमारी मोबाइल की चल पड़ी है, तो थोड़ा सा आप दूर तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे समय में पढ़ाई होती थी लिखावट की। एक एक लेसन 4-4 बार लिख के लाओ, एक एक कविता 4-4 बार लिख के लाओ। आजकल सब कंप्यूटर में हो गया, मोबाइल में हो गया। लेकिन मोबाइल का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बच्चे भी देखते हैं और माँ बाप भी देखते। तो बच्चों को एक टाइम लिमिट बांधना चाहिए, मोबाइल का टाइम टेबल बनाना चाहिए कि भाई एक तो ये नक्की ज़रूर कर लीजिए आप, नाश्ते के समय, खाने के समय ना आप मोबाइल देखेंगे ना बच्चों को दिखाएंगे। मैंने आपने किसी ने दैनिक भास्कर पढ़ा होगा कल का, उसमें एक पुरानी आती है मधुरिमा करके। उसमें एक वरिष्ठ साइकोलॉजिस्ट है दिल्ली के, डॉक्टर चीनू अग्रवाल। मैं उनका कुछ लाया हूँ लेख। वो लेख के जो मेन पार्ट है वो पेरेंट्स के लिए बताने लायक है, तो मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्योंकि अभी परीक्षाओं का सीजन आ रहा है, महीने 2 महीने में परीक्षाएं
चालू हो जाएंगी। स्कूली परीक्षाएं सिर पर है और हैरान परेशान माता पिता है। परीक्षा जिनके ज्ञान का है, इसके लिए वो खुद तैयार होना जरूरी है। अभिभावक भी समझे और बच्चे भी। अभी इन्होंने एक ये लिखा है, माता पिता का निरंतर हस्तक्षेप और दबाव बच्चों के आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बच्चे यह महसूस करते हैं कि उनकी हर छोटी छोटी गलती पर उन्हें आंका जाएगा, जिसमें उनमें तनाव, चिंता, अवसाद और आत्मसम्मान की समस्याएं उत्पन्न होती है। माता पिता का यूं हस्तक्षेप करना बच्चों को हर चीज़ तैयार अवस्था में देता है, जिससे वे जिम्मेवारी व निर्णय लेना नहीं सीख पाते। मतलब बच्चों को अपने आप भी बड़ा होने देना चाहिए। अपन उसको बड़ा ना करके उनको भी अपने आप में डेवलप होना चाहिए। परवरिश की यह शैली, जिसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी कहा जाता है, बच्चों के मानसिक भावनात्मक विकास को बाधित कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चे न तो कठिनाइयों से निपटना सीखते हैं, न ही अपने निर्णयों के परिणाम समझ पाते हैं। वे जिम्मेवारी नहीं लेते और आत्मनिर्भरता भी कमी महसूस करते हैं। ध्यान रहे, माता पिता का मुख्य कार्य बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाना है, न कि हर समस्या का हल उनके लिए खुद ढूंढना। माता पिता के लिए सलाह भी उन्होंने बताई है, खुद को तनाव मुक्त रखें। परीक्षा बच्चों की आती है, तनाव में माता पिता हो जाते हैं। बच्चों की जिम्मेवारी सिखाने में समय लगता है, सो धैर्य रखें। बच्चों के साथ संवाद करें, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। बच्चों को उनके प्रयासों के लिए सराहें, न कि केवल परिणामों के लिए। उन्हें समझाएं कि गलती और असफलता सीखने का हिस्सा है और इससे सुधार और विकास होता है। स्पष्ट अपेक्षाएं रखें। बच्चों को यह बताएं आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। परीक्षा की तैयारी हो या घर के छोटे मोटे काम, उन्हें जिम्मेवारी निभाने के लिए प्रेरित करें। समय प्रबंधन सिखाएं, मतलब एक टाइम टेबल बनाएं। बच्चों को समय पर महत्व समझने और उन्हें खुद अपना टाइम टेबल बनाने दें। यदि वे असफल होते हैं तो उन्हें सुधारने का मौका दें। प्राकृतिक परिणामों को समझने दें। यदि बच्चे अपने जिम्मेवारियों को नहीं निभाते तो उन्हें परिणाम भुगतने दें। यह उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देगा। भावनात्मक प्रदर्शन समर्थन दे। बच्चे के प्रति सहानुभूति रखें। उनसे यह महसूस कराएं कि आप उनके साथ हैं, लेकिन आप उनसे सब कुछ नहीं करेंगे। रोल मॉडल बने। अपने व्यवहार से बच्चों को सिखाएं कि जिम्मेवारी कैसे निभाई जाती है। यदि आप खुद अनुशासन और समय प्रबंधन का पालन करते हैं तो बच्चे भी उससे प्रेरित होंगे। मूल्यांकन करें, आलोचना नहीं। यदि बच्चे अपने काम में असफल होते हैं तो उनकी आलोचना करने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि समस्या कहाँ है। बच्चों को साथ मिलकर समस्या का हल निकालें। उन्हें हल को अपनाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को फैसले लेने दें। बच्चों को छोटे छोटे निर्णय लेने दें, जैसे कि उन्हें क्या पढ़ना है या अपनी दिनचर्या कैसे बनाना है आदि। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी यहाँ 10th के बच्चों को जो पारितोषिक दिए गए हैं, उनके माता पिता से मेरा इतना ही कहना है कि अपने बच्चों पे फोर्स न करें। उनकी जो इच्छा हो वो करने दे। उनको स्वयं को बड़े होने दे। और इसी के साथ सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों की परीक्षा आवे तो आप तनाव में ना आए।
तनाव मुक्त रहे, खुश रहे। उसी तरह मैं आज जिन बच्चों को पारितोषिक किया मिला है, जिनको नहीं मिला, उनको भी मेरी ओर से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ के सारे टीचर्स का मैं अभिनंदन करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much. I request very respected B.M. Agrawal ji sir to please guide us. आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय अशोक बाबू गुप्ता जी, अध्यक्ष हमारे संस्था के बगड़िया जी, अनिल बाबू तापड़िया, उपाध्यक्ष शरद जी अग्रवाल, गोपाल बाबू, हमारे गुरु बोलते उनको राजगुरु, चावला मैडम, चौहान मैडम, आप सभी माता पिता, विद्यार्थियों, मैं सिर्फ 5 मिनट लूँगा आपके। मैं कोई भाषण देने का मेरा काम भी नहीं है। अशोक बाबू ने आपको बताया कि पहले पढ़ाई कितनी कठिन होती थी। मैंने आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने वेद व्यास का नाम सुना है क्या? बच्चों, वेद व्यास का नाम सुना है क्या? शाहरुख खान का नाम सुना है क्या? देखो ये हम कहाँ जा रहे हैं। तो वेद व्यास के पुत्र थे शुक्राचार्य। वो उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, वो ज्ञान आत्मा वगैरह पढ़ाई करते थे। वो अपने पिता को, वो ज्ञानी थे, बहुत पूछते थे, लेकिन वो पिताजी से खुश नहीं हुए। पिता बोले शुक तू जा, राजा जनक के पास से कुछ पढ़ के आ जा। वो राजा जनक के पास गए। सुनो बच्चों, तुम्हारे काम की बात बोल रहा हूँ। अशोक बाबू ने जो बात लाई है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। वो शुक्राचार्य उनके घर गए राज दरबार में। वो द्वारपाल ने बोला रुको। रुको कितना? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रुका। और वो खड़े की खड़े, न चाय न पानी न खाना न पीना। 6 दिन बाद बोले अतिथि गृह में बुलाया उनको। अतिथि गृह में खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, जो होना, फल फ्रूट, पानी पूरी, समोसे, कचौरी, लेकिन उन्होंने जो सामने आता था वो खाते थे। कहीं उधर ध्यान उन्होंने दिया नहीं। फिर 6 दिन बाद और बुलाया जनक जी ने। किधर आए? बोले आप। बोले मुझे ज्ञान होना। उनके हाथ में एक तेल का कटोरा दिया। कटोरा, मेरी बात सुनो ध्यान से। तो बोले तेल में कटोरा ले हाथ में, और पूरे मिथिलाक्षर नगरी में चक्कर मार, एक भी बूंद तेल का नीचे गिरना नहीं चाहिए। शुक्राचार्य ने वो कटोरा लिया। पूरा मिथिलेश्वर नगर के अंदर व्यापार हो रहा, उद्योग हो रहा, नृत्य नाच रहे, खेल रहे, कुदम, लड़ाई झगड़े। वो अपना कटोरा लेके दिन भर घूम के फिर राजा जनक के सामने आए। जनक बोले तू सीख गया, तेरे को विद्या मिलेगी। तो अशोक बाबू ने जो बात बोली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उधर ध्यान दो। आज विद्या बहुत सरल हो गई है। बच्चों के डांटते तो माँ बाप झगड़ने करने आते। मेरा पोता स्कूल में था, उसके टीचर ने कंप्लेंट कर दी उसने अपने पिता टीचर के। मैं स्कूल में गया, बोला टीचर आपने इसका कान क्यों पकड़ा, इसको एक झापड़ क्यों नहीं मारी आपने कान पकड़ के गलती करी है। तो माँ बाप को बोलना है ये बच्चे जो शिक्षक है, ये माँ के बाद में अगर दूसरा कोई गुरु होगा तो ये शिक्षक लोग हैं, उनका आदर करो, उनके बात पर विश्वास करो। इतना बोल के मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि उनके बैठने की व्यवस्था स्टेज के सामने की गई है, प्लीज़।